All right, let's start now. Uh, After revising all the concepts, यहाँ पे हमने सारे concepts का revision किया. Strategy वाले एरिया का most likely बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में देख लिया. अब हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं. This is basically the Bloom Conservation Organization BCO. This is September 2020 basically. और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. अगर आप इसका रिक्वायरमेंट वाला टैब देखें तो ये पहली रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 मार्क्स की है. इसके अलावा फिर उसके बाद करते करते करीब करीब 50 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन पूरा फॉल करता है. 50-60 नंबर के आसपास, 70 नंबर के आसपास फॉल करता है. इस इसमें एक दो एरियाज ऐसे जो हमारे स्कोप में रेलिवेंट नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. बाकी एरियाज हम करेंगे. तो आए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. The Bloom Conservation Organization is a not-for-profit charitable organization set up to protect endangered wildlife around the world. It was founded 50 years ago by Dana Bloom, a wealthy entrepreneur with a passion for wildlife protection. She set up the BCO Wildlife Park in her home country of Greenland, and since it was founded, the Wildlife Park has provided intensive hands-on management of some of the world's most threatened animals. ब्लूम कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. इसका काम है वाइल्ड लाइफ के लिए इस तरह की प्रोटेक्शन वगैरह बनाना. 50 साल पहले इसे बनाया गया था. डायना ब्लूम के नाम से शायद फाउंडर है. वेल्दी एंटरप्रेन्योर विद पैशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को मैनेज किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है. सही. In the wildlife park, animals breed and increase in number while the keepers and wildlife experts study them to learn more about what they need to thrive in the wild again before releasing them. The BCO also operates 20 in the field animal protection programs, that is animal welfare and management activities occurring in animals' natural habitats in 15 countries worldwide. The BCO employs teams of locally based wildlife experts and volunteers to manage and protect some of the most endangered animals in the world. अच्छा जी, आ जाते हैं एक स्टेप आगे. ये बेसिक बैकग्राउंड हो गया कंपनी के बारे में. Much of the BCO's income comes from donations from public and from corporate donors. तो यहाँ पे ये काम की बात है. डोनेशंस और कॉर्पोरेट डोनर्स CSR के ऊपर ये डिपेंडेंट है. इनका पैसा सारा वहां से आता है. The BCO also generates income from legacies, which are donations left when people die. G-Land, as with many other developed economies around the world, has suffered from an economic recession for several years, and many charitable organizations have struggled to survive in such difficult economic times. So यहाँ पे एक और चीज है जो हमें यहाँ नोट करनी चाहिए. जिस जगह पे ये ऑपरेट कर रहा है, जिस जिस इन्वायरमेंट में ये ऑपरेट कर रहा है, जिस शहर में ये कंट्री में ये ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर काफी हद तक एक इकोनॉमिक रिसेशन आया है सेवरल ईयर्स, और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे सरवाइव करना स्ट्रगल रहा है. ठीक है. However, the BCO has managed to maintain its position as a world-leading charity in wildlife protection by implementing programs of cost-cutting, rationalization, and more targeted and active promotion of its activities. The BCO has a board of trustees which oversees the management of the charity, which is undertaken on a day-to-day basis by the management board. Dana Bloom, who is now over 80 years old, has very recently stepped down from her role as chairperson, and a new chairperson, Rani Jeffels, has just been appointed. ठीक है. इनका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जो सारी की सारी मैनेजमेंट ओवरसी करता है. डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट बोर्ड है पूरा. डायना ब्लूम जो कि 80 साल से ज्यादा का मामला उनका हो चुका है, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है फ्रॉम हर रोल एज अ चेयरपर्सन, और नया चेयरपर्सन रानी जेफिल्स हैज जस्ट अपॉइंटेड. This person has a very strong commercial background, having previously been a chief executive of several G-Lands leading corporations. ठीक है. You work as a senior finance manager of the BCO. बहुत डिटेल्ड और अच्छा बैकग्राउंड बताया हुआ है. अभी करंटली सितंबर 2021 की बात हो रही है. The following exhibits provide information relevant to the case study. Extracts from the BCO's annual report. The extracts highlight the BCO's mission, vision, aim, objectives, and its main activities in the latest financial year. एक एग्जिबिट में हमें ये बताया हुआ है, मिशन, विजन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. दूसरे में बताया अबाउट अस पेज ऑफ द BCO वेबसाइट. द वेबसाइट पेज सेट्स द लीडरशिप स्ट्रक्चर and governance of the charity. BCO's financial activities and KPI, a summary of the income and expenditure.
यहाँ पे इन्होंने हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। चैरिटी सेक्टर की रिसर्च रिपोर्ट है, रिसेंट रिसर्च आर्टिकल डीलिंग विद द मेन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका रिस्क रजिस्टर है, ये बेसिकली वो 40% वाला एरिया है जो आईटीडी में कल कवर करना था, रिस्क मैनेजमेंट वाला एरिया, लेकिन थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड बता के हम इस पर काम कर सकते हैं। आर्टिकल ऑन चैरिटी लीडरशिप, एक न्यूज आर्टिकल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारी? सबसे पहला, द न्यू चेयरपर्सन has recently commenced his new role with the BCO and wants to find out as much as possible about the organization. He has called a meeting with the management board and has asked for each board member to make a short presentation to assist him in better understanding of the BCO. The Chief Finance Officer, CFO, has been asked to present on the BCO's governance principles and activities and its financial and non-financial performance in the latest financial year. The CFO has asked you to assist him in preparation for this presentation. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ज्यादा ताल्लुक होगा वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाले एरिया से होगा। गवर्नेंस वाला एरिया या बहुत ज्यादा लीडरशिप वाला एरिया ये रिलेटिवली आपके सिलेबस में अंदर टच नहीं करता। हाँ, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हमारा उसमें है, एथिक्स है, लेकिन अगर आप एसीसीए का ये पेपर देखें, एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप, तो वहाँ पे गवर्नेंस का पूरा एक एरिया है, पूरा एक चैप्टर है, उतना हमारे उसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, एडवांटेजेस ऑफ टू टियर बोर्ड स्ट्रक्चर और मिशन स्ट्रेटेजिक, जब ये तीसरा वाला हमारे लिए रेलेवेंट है। हाउ द मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट इट्स की स्टेक होल्डर नीड्स। और उसके बाद कहते हैं एनालाइज द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बीसीओ इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडिंग रीजंस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट। ये हमारे लिए रेलेवेंट है बहुत, क्योंकि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालाइज करने का वैसे भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर एरिया देखते हैं। सो दिस इज रेलेवेंट दैट विल डू। ठीक है, और हम बात करेंगे फिर इसके ऊपर खासतौर पर डिटेल में बात करेंगे। दिस इज ऑफ 13 मार्क्स। आगे कहते हैं सेकंड पार्ट में, in its recently published annual report, the BCO set out 3 strategic objectives for the next 5 years. The new chairperson is keen to understand in more detail how the company's external environment will impact on these strategic objectives and has asked the CFO to provide him with this information. CFO has asked for your assistance in preparing the report. Prepare a report which evaluates to the extent to which the external environment could impact on the BCO's strategic objectives. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पे हमें इसको एनालाइज करना है। ये कोर स्ट्रेटजी का वो एरिया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाली चीज हमें देखनी है। फिर कहते हैं इन एडिशन टू द रीसेंट इन्वेस्टमेंट मेड इन अपडेटिंग द मेंबर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, the chief executive officer highlighted in the annual report that the BCO is looking for further opportunities to invest in e-business technologies. ये वाला एरिया भी हमारे लिए relevant है। The CFO has been asked to make a presentation to the board of trustees and has asked for your assistance in preparing his presentation. Prepare 3 slides which recommend with clear justifications 3 applications of information technology that the BCO could use to enhance its e-business capabilities. ये वाला एरिया भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक सिनेरियोस में सारी चीजें आपस में लिंक हो रही है। फिर कहते हैं prepare a confidential report which evaluates the BCO's current risk register and the adequacy of each of the risk mitigating activities. ये बहरहाल इसके बाद का एरिया है रिस्क वाला। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया अगेन गवर्नेंस और बोर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ इतना रेलेवेंट नहीं है, गवर्नेंस एंड बोर्ड स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पे प्राइमरीली जिस चीज के ऊपर फोकस करना है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाले एरिया पे फोकस करना है जो पहला वाला है। दिस इज द मेजर एरिया विच वी आर गोइंग टू डू। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने वाली चीज पे फोकस करना है, ये एक मेजर एरिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है थर्ड, और फिर इवेंचुअली आखिर में रिस्क रजिस्टर वाली चीज के ऊपर फोकस करना है। तो ये 4 बड़े एरियाज हैं जिसके ऊपर हमें इस सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, हर एरिया के लिए या हर रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने हमें एक एग्जिबिट अलग से दिया हुआ है। तो आए इस एग्जिबिट को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Extracts from the BCO's annual report highlighting mission, vision, aim, objectives, and its main activities. Our mission: protecting and conserving our wildlife for future generations. A safer, healthier world where people respect and support our wildlife. Mission क्या है इनका? Protecting and conserving our wildlife for future generations. अच्छा देखो, जो हमेशा जो मिशन होता है ना, this is often quantifiable, plus you can say this is achievable. This is something जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिसको अचीव किया जा सकता है।
जिसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक मेजरेबल चीज होती है मिशन। जबकि विजन एक ऐसा रास्ता होता है या एक ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो आप जिंदगी भर करते रहे लेकिन वो कभी पूरा नहीं होगा। जैसे सेफर हेल्थियर वर्ल्ड वेयर पीपल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट आवर वाइल्ड लाइफ, ये एक मकसद है, ये एक विजन है जो जिंदगी भर भी अगर ये करते रहे तो कभी जिंदगी में अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई चैलेंजेस ऐसे आते रहेंगे जिसकी वजह से सेफ्टी या हेल्थ या इस तरह की रिस्पेक्ट या सपोर्ट वाइल्ड लाइफ को ये कॉम्प्रोमाइज होता ही रहेगा, ये कॉम्प्रोमाइज होता ही रहेगा। जैसे मिशन के अंदर एक बैंक ये कह सकता है कि हमें पाकिस्तान का नंबर 1 बैंक बनना है, ये मेजरेबल है कि आप नंबर 1 बैंक बनना चाह रहे हैं, ये मेजरेबल है, नंबर 1 बैंक बनना चाह रहे हैं। लेकिन विजन के अंदर वो ये लिखते हैं कि हमें कस्टमर की अटमोस्ट कन्वीनियंस और तमाम बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए काम करना है। तो भाई जिंदगी पूरी बदलती रहेगी, हर दौर में नया नया एलिमेंट आता रहेगा, नई नई चीजें आती रहेंगी और आपको हर दौर में अपनी बैंकिंग को इवॉल्व करना होगा। तो वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर आप चलते रहेंगे लेकिन वो 100% अचीव नहीं हो सकता। एम देखो, to support and increase the number of healthy and thriving wildlife communities across the world and encourage everyone to be more involved in the natural environment they live in. ये इनका एम है, obviously connected है। Our strategic objectives. We have set out 3 clear strategic objectives for the next 5 years. These are: ensure that 100 threatened species are protected and returned to their natural habitat, invest in 100 wildlife habitat projects across the world through providing training and education for local staff, volunteers, and communities. Ensure 1 million people are better connected with nature through education and awareness of the natural world that they live in. तो ये 3 एलिमेंट्स यहां पर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। एक, आप 100 स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें और अपने नेचुरल हैबिटेट पे लेकर आए। 100 वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के अंदर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे ट्रेनिंग और एजुकेशन फैले लोगों में, और इंश्योर करें कि तकरीबन 10 लाख लोग आर बेटर कनेक्टेड विद नेचर थ्रू एजुकेशन अवेयरनेस। उसमें आपने अपने आप को टारगेट दिया कि करीबन 10 लाख लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। अब आइए पढ़ने के बाद रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या थी पहली वाली? सर रिक्वायरमेंट में कह रहा था हाउ द कंपनीज मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट इट्स की स्टेक होल्डर नीड्स। जो की स्टेक होल्डर था जिसने कंपनी स्टार्ट की थी, ऑब्वियसली स्टार्ट करने वाला पैशनेट था बहुत ज्यादा, इन्होंने बैकग्राउंड के अंदर ये चीज हमें बताई है, बंदा काफी पैशनेट था, इसने वाइल्ड लाइफ के लिए सारी चीजें स्टार्ट की। अब जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं वो सोसाइटी है, वो लोग हैं, वो जानवर हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह हैं। हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो मिशन, एम और एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने यहाँ पे बताए, मिशन, विजन और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बताएं, क्या ये स्टेक होल्डर नीड्स के साथ पूरे तौर पे अलाइन होते हैं या नहीं होते? जी भाई, क्या ओपिनियन है आप लोगों का इस पे? क्या ये अलाइनमेंट यहाँ होती हुई नजर आती है? जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, क्या वो इनके लॉन्ग टर्म मिशन, विजन को, स्टेक होल्डर की नीड्स को मीट करता है? जी भाई, एनीवन? सॉरी यार, आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट टुडे, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैंने वर्कशॉप अनाउंस कर दी थी तो आई हैड टू टेक इट। थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहेगा, प्लीज बेयर विद मी। सिर्फ यस नहीं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बतानी है ना, थोड़ा बहुत अपना माइंड प्रोसेस भी बताएं, थॉट प्रोसेस भी बताएं। कैसे अलाइन हो रहा है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, अगर फॉर प्रॉफिट होती तो किस तरह देखा जा रहा होता, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है तो किस तरह देखा जाएगा? Mission statement is clearly aligned with the key stakeholder objectives, which is protection of environment and wildlife. चलो आप इसको देखते हैं। अब इस आंसर को अगर आप शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यार अगर एक फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है
तो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी सोचती है इकोनॉमिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचती है, ऐसा नहीं है नहीं सोचती, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो वेल्थ को मैक्सिमाइज करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। ये कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट बनाने के पीछे हमेशा, अगर आप कोई टैक्स इवेजन डिवाइस नहीं बना रहे, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप दिल से कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, तो उसके पीछे हमेशा एक कॉज होता है। यहाँ जो कॉज है वो नेचुरल हैबिटेट है, एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है। सबसे पहले तो इस पे 2 लाइन लिखो कि आपको समझ आया है भाई इसका कॉज ये है। क्लियरली स्पीकिंग जो मिशन और विजन है, जो मिशन और विजन है, दिस इज क्लियरली अलाइंड विद द कॉज। सबसे पहले तो कंपनी के विजन में और कंपनी के 5 साल 10 साल मिशन के अंदर ये क्लियरली नजर आता है कि जिस कॉज के लिए इन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है ये पूरा भी हो रहा है। अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे, कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने हमें 3 बताए। पहला इन्होंने बताया थ्रेटेंड स्पीशीज, 100 थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, क्या ये 100 थ्रेटेंड स्पीशीज, क्या ये 100 थ्रेटेंड स्पीशीज वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये इनके मिशन से उस कॉज से अलाइन होता है? बिल्कुल सर, एक तो ये अलाइन होता है, मैच करता है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अलाइनमेंट के साथ साथ दूसरी बात आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो एक ही स्टेक होल्डर है इस पूरे बिजनेस का, वो इट सेल्फ स्पीशीज है। जैसे कंपनीज के लिए कस्टमर होते हैं जिनके लिए कंपनी काम कर रही होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट में जो कॉज होता है उसको, जिन चीजों के लिए आपने उस कॉज को स्टार्ट किया, तो वही आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्फन एज है तो ऑर्फन उसके स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल है तो पेशेंट्स उनके स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अगर कोई क्लब है तो क्लब के मेंबर्स उनके स्टेक होल्डर्स हैं। यहाँ पे अगर ये वाइल्ड लाइफ के लिए स्टार्ट हुआ है तो जो स्पीशीज है वो इनके स्टेक होल्डर्स हैं। और अगर आप 100 थ्रेटेंड स्पीशीज को बचा रहे हैं तो ये क्लियरली आपके की स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं। और ये की स्टेक होल्डर्स बनने की वजह से यहाँ पर एक नीड है इनकी, जो नीड इधर पूरी हो रही है। ये आपने एक बेहतरीन डिटेल्ड में ये आंसर लिखना है, इस तरह से लिखना है। ये बस नहीं लिख देना है कि हाँ कंपनी वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रही है तो इसके अंदर नजर आ रहा है कि वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रही है। आपने बताना है कि भाई ये जो स्पीशीज का यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दिस इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, दिस इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि कंपनी काम ही इसी के लिए कर रही है, कॉज ही है। ये रिक्वायरमेंट देखिएगा दोबारा, रिक्वायरमेंट में उसने क्लियरली बोला है हाउ द मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट इट्स की स्टेक होल्डर नीड्स। तो स्टेक होल्डर नीड तो पूरी हो रही है। जो आपका यहाँ पे स्टेक होल्डर है इटसेल्फ वो जानवर है, वाइल्ड लाइफ वाले स्पीशीज हैं। और अगर आप उन स्पीशीज को दोबारा अपने नेचुरल हैबिटेट पे रिटर्न कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली उनकी नीड को फुलफिल कर रहा है। ये अल्टीमेटली इनकी नीड को फुलफिल कर रहा है। इस नीड को फुलफिल करने की वजह से हाँ ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पे बनाया है वो समझ में आती है बात, हाँ ये नीड को फुलफिल करता है। तो दूसरे को उठाओ, 100 वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मिलेगा किसको? लोकल स्टाफ को, वॉलंटियर्स को और कम्युनिटीज को। एक एजुकेशन वाला एंगल जो है वो दिया जाएगा। जब इनके पास एजुकेशन अवेयरनेस होगी, जब इनके पास एजुकेशन अवेयरनेस होगी तो रिजल्टिंगली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ विल बी इंप्रूव्ड। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन अपने आप इंप्रूव कर जाएगी जब इनके पास ये एजुकेशन अवेयरनेस होगी। सिर्फ बजाय ये लिख देना कि हाँ वाइल्ड लाइफ के या नेचुरल हैबिटेट के प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है, सही है, नहीं, यहाँ पे स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है। स्टेक होल्डर कौन है? वो स्पीशीज। वो स्पीशीज को इटसेल्फ प्रोटेक्शन मिलेगी जब लोगों को अवेयरनेस होगी इस बात की।
तो इनडायरेक्टली आप, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ऑब्वियसली, लेकिन इनडायरेक्टली आप इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिनेरियो के साथ एग्जैक्टली चीजों को लिंक करना, कि आपने स्टेक होल्डर वर्ड को भी पिक किया, डिफाइन किया कि स्टेक होल्डर कौन है और कैसे उसकी उस नीड को पूरा किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड हमारे पास इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ensure 1 million people are better connected with nature through education awareness of the natural world they live in। ठीक है, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं 1 मिलियन पीपल की। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे स्टेक होल्डर नीड कैसे मीट हो रही है? एनीवन इस तीसरे वाले में, ये जो हम 10 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जी भाई, कैन एनीवन एक्सप्लेन यहाँ पर कैसे ये 10 लाख लोगों को? कम्युनिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन, लोकल कम्युनिटीज आर आल्सो आवर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। अवीन आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, अमील तुमने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि कम्युनिटी हमारे लिए स्टेक होल्डर है, लेकिन उनकी नीड कौन सी पूरी हो रही है? यहाँ बात हो रही है स्टेक होल्डर नीड्स की। कौन से स्टेक होल्डर की नीड पूरी हो रही है यहाँ पे? स्पीशीज टू सेव नेचर ऑफ वर्ल्ड। आप देखो तुम लोग स्टेक होल्डर में कंफ्यूज हो गए हो ना। फैजान की बात से लग रहा है कि नेचर हमारा स्टेक होल्डर है, पहले तुम लोगों ने कहा कि कम्युनिटी हमारा स्टेक होल्डर है, अवीन ने आप कह दिया कि सर स्पीशीज हमारे स्टेक होल्डर है। As with education, local community can know how to treat species। देखो यहाँ पे एक लाइन है, इस पे गौर करना है। बेटर कनेक्टेड विद नेचर। यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी होनी, मतलब लिखनी चाहिए, टू कनेक्ट विद नेचर is itself good for human beings। ये लोगों के लिए बेहतर है, for their mental health, for their better being। यानी जिंदगी को बेहतर बनाता है ये। अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, आपको नेचर की समझ है, आप किसी भी वक्त जा सकते हैं बगैर डरे बगैर परेशान हुए। अगर आपको नेचर की समझ है, आपका इंटरेस्ट इस तरफ डेवलप हो रहा है, तो आप मेंटली ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। एंड दिस ऑब्जेक्टिव सर्व्स दिस पर्पस। दिस ऑब्जेक्टिव सर्व्स दिस पर्पस। अब यहाँ पे जो स्पीशीज है, जो जानवर है, उन पे फोकस नहीं कर रहा मैं, फोकस में कम्युनिटी पे कर रहा हूँ, लेकिन एम्फसाइज इस बात पे कर रहा हूँ कि भाई लोगों का नेचर के साथ कनेक्ट करना इटसेल्फ एक स्टेक होल्डर नीड है। So then how is this point related to the mission? ये देखो, a safer, healthier world where people respect and support our wildlife, ये completely vision के साथ मिला हुआ है। Future generations, लोगों के लिए बचाना, generations reflect people, world, people, ये देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है people, ये देखो वर्ल्ड का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। समझ में आती है बात कैसे कनेक्ट हो रहा है आपस में? वो सिर्फ जानवरों के लिए काम नहीं कर रहे, वो एक तरफ जानवरों को अपने नेचुरल हैबिटेट तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो इस नेचर से फायदा उठा सके। क्या समझ आती है ये बात? दिस वर्ल्ड बर्ड स्टेक होल्डर नीड, इससे हमें इसको कनेक्ट करना था। ड्राफ्टिंग में इसको कहते हैं सिनेरियो से लिंक करना। अक्सर लोग ये लिंकेज नहीं बना पाते। अब यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा जेनेरिक बातें लिख देते हैं कि जी हाँ अच्छा है, विजन में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आप उसका सजेस्टेड सॉल्यूशन भी देखेंगे ना, अगर जो ईसीसी ने दिया है, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इसके अंदर ये बात लिखी है कि भाई ये कम्युनिटीज की नीड होती है, दैट दे गेट इन कांटेक्ट विद नेचर फॉर देयर मेंटल हेल्थ, फॉर देयर बेटर अपब्रिंगिंग। अगर वो ये करेंगे तो वो उनके लिए ही बेहतर है सबसे ज्यादा। एंड दे हैव सिग्निफाइड नॉट ओनली एनिमल्स ओवर हियर बट पीपल एज वेल। A safer, healthier world where people respect and support our wildlife। ठीक है जी।
चलो, तो यहाँ पे हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है मुकम्मल। अब आ जाते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस रिव्यू की बात होगी। इन्होंने हमें कहीं पीएनएल वगैरह दिया हुआ है? बिल्कुल, ये समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ये रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी है? सेकंड वाली है ना। एनालाइज द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021, providing reasons for and implications of the results. ये आ जाए रिव्यू ऑफ 2021 पे। Our financial position continues to be challenging. Operating a world-class wildlife park and global animal protection programs is costly. Hence, our need for a range of income streams. This year, we reluctantly raised the price of admission to the wildlife park for the first time in 5 years. 5 साल में पहली बार, ना चाहते हुए भी, reluctantly word ना चाहते हुए भी, इन्हें 5 साल में पहली बार इस प्राइस को इंक्रीज करना पड़ गया। This decision was taken with a view to using the increased revenue to invest in better long-term facilities and experience for our visitors. Our wildlife park facilities continue to be popular, resulting in increased revenues from our on-site shop and cafe. Income from legacies was down in 2020, a continuing trend on the past few years, highlighting the volatile nature of reliance on legacy income. We sold one of our properties in the last year, and 2 more will be sold next year to fund the extension of the visitor center, which we hope will contribute to our objective of connecting people with nature. We were also successful in securing over $2 million in grant-funded donations over the next few years. This is a significant source of income for the BCO, and we are grateful to those organizations which have awarded these grants. A huge amount of work over the year went into updating our members' database management system, which will be in place in 2022 and allow us to communicate more effectively with members and permit online fees payments. Further, investment in information technology is a key to our growth in the coming years in our drive to streamline our business and to educate and communicate more effectively with our stakeholders. We'll be launching a redesigned website in 2022 and are looking for new opportunities to use e-business technologies more effectively in areas such as online education, digital marketing and social media. सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये हमें पहली बार प्राइस बढ़ानी पड़ गई क्योंकि इतना आसान नहीं है इस पूरे सिस्टम को चलाना, इस सेटअप को चलाना। लेगेसी से जो इनकम आ रही है वो थोड़ी सी गिर चुकी है, कंटिन्यू ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है, पास में काफी वॉलेटाइल नेचर रहा है। ये 2020 की बात कर रहा है तो गालिबन कोविड का भी जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहा हो। इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेच दी, आगे मजीद प्रॉपर्टीज बेचने वाले हैं ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। और इन्हें ग्रांट फंडेड डोनेशन भी मिला करीबन 2 मिलियन का ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड इससे इनको काफी लगता है कि इनकी इनकम सोर्स जो है वो डेवलप हो सकती है। अब काफी काम ये 2022 के अंदर जो समझ रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा और उससे जो है वो लोग इस्तेफादा कर सकेंगे। वेबसाइट को भी रीलॉन्च करने की यहाँ पे इन्होंने बात की और काफी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं जिससे ये ई बिजनेस को कनेक्ट कर सके। It was with great sadness that we said goodbye to Dana Bloom last month. Our founder had been a tireless supporter of the BCO, and her work, imagination, vision, and determination has played a vital role in making the BCO the world-leading charity that it is today. She has been inspirational in creating a world where many endangered animals have been given a chance to thrive. We wish Dana a very happy and peaceful retirement. ये इन्होंने 2021 के रिव्यू के बारे में कंप्लीटली जो है वो बात की है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर समरी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसको देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क एडमिशंस 3.1 मिलियन, 3 मिलियन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है, बहुत ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं है। मेंबरशिप फीस ऑलमोस्ट फ्लैट। कॉर्पोरेट में थोड़ा सा इंक्रीज, लेकिन नंबर बहुत छोटा है। इंक्रीज तो वैसे डबल का है लेकिन नंबर है बहुत छोटा इटसेल्फ। एजुकेशन प्रोग्राम से जो इनकम आ रही है उसमें डिक्रीज है। वाइल्ड लाइफ पार्क शॉप एंड कैफे थोड़ा सा इंक्रीज नजर आ रहा है, समवट अबाउट 10%, 10 to 15%। डोनेशन ग्रांट्स में डिक्रीज आ गया है, दिस इज अलार्मिंग। सबसे बड़ा नंबर देखो यही है, इसमें डिक्रीज आ गया। सेल ऑफ प्रॉपर्टी जैसा कि उन्होंने बताया 525, ये यहाँ पे नजर आ रही है। कुल मिला के टोटल में अगर आप नंबर देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं है। इनकम तकरीबन फ्लैट है इनकी। प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी 792 और 721 चंद नंबर्स का ही फर्क है सर, ठीक है, 70-80 नंबर का फर्क है, ज्यादा का नहीं है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो इंक्रीज कर रहा है, मोर देन 10% का इंक्रीज यहाँ पर है, ठीक है।
एनिमल सपोर्ट कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है, स्टाफ ट्रेनिंग में रिलेटिवली कमी आई है क्योंकि सारे पैसे कम होंगे तो ट्रेनिंग का बजट काट दिया होगा इन्होंने। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क शॉप एंड कैफे ये कम किया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अदर कमर्शियल इनकम ये बढ़ी है अपनी जगह पे। बहरहाल तकरीबन 20% का इंक्रीज हमें यहाँ पे, नहीं 20% नहीं सॉरी 2% का इंक्रीज हमें यहाँ पे तकरीबन नजर आ रहा है, ठीक है। ये नेट इनकम हमारे पास इस तरह से निकल के आ रही है। नेट इनकम में काफी डिक्लाइन है, बहरहाल नेट इनकम में काफी डिक्लाइन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है नेट इनकम की, ठीक है। आगे कहते हैं नंबर ऑफ पेड स्टाफ एम्प्लॉयड वाइल्ड लाइफ पार्क इन द फील्ड। नंबर ऑफ पेड स्टाफ थोड़ा सा कम हुआ है, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स बढ़े हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क विजिटर नंबर्स 263 से 258। इनकम पर विजिटर फ्रॉम कैफे एंड शॉप ये थोड़ी सी इंक्रीज करी है। एवरेज ट्रेनिंग डेज पर स्टाफ मेंबर ये कम हो गया है। अब जो इनका एक मोटिव है ट्रेनिंग और एजुकेशन वाला, वो चीज थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। कॉस्ट पर स्टाफ ट्रेनिंग डे थोड़ा सा स्लाइट चेंज है उसके अंदर। नंबर ऑफ एक्सटर्नल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटिवली फ्लैट, और नंबर ऑफ एनिमल्स रिटर्न टू नेचुरल हैबिटेट्स ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज। 1595 से 1680 का मतलब है चंद परसेंट का इंक्रीज हुआ है। 1680 डिवाइड बाय 1595 -1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैलकुलेटर पे आ रहा है तकरीबन 5% का चेंज यहाँ पे नजर आया है, ठीक है। 5% का चेंज हमें यहाँ पे नजर आया। तो एक ये इन्होंने पूरा ओवरव्यू बताया 2021 का, और इसके अलावा इन्होंने हमें यहाँ पे एक ही ओवरव्यू बताया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कमेंट करते हैं कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। जी भाई, क्या एनालाइज करते हैं आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर? एनीवन? टाइम चाहिए अगर सॉल्व करने का तो बेशक थोड़ा टाइम ले ले। जो भी थॉट्स आपके जहन में आते हैं यू कैन कंट्रीब्यूट दोस थॉट्स विद मी। चैट पे बताना चाहे चैट पे बता दें, माइक पे बताना चाहे माइक पे बता दें। जी भाई, कोई चीज आती है जहन में आपके? कॉस्ट को एनालाइज करो, नंबर्स को एनालाइज करो, देखो कहाँ पे कंपनी को फोकस करना चाहिए, किधर मजीद कोई काम किया जा सकता है, इस तरह से रिकमेंडेशंस आ सकती है। सर कैन यू स्विच द पेज टू फाइनेंशियल रिपोर्ट? अभी कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट। चलो इसके ऊपर थोड़ी सी अब कमेंट्री हम कर सकते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डोनेशंस एंड ग्रांट्स। अच्छा, एक हमारे पास आया है कंट्रीब्यूशन अमील की तरफ से। Donations and grants have significantly reduced, amounting to XX percentage. This factor, coupled with the death of the founder, will reduce our future grants and income streams. ठीक है, very good. और कोई पॉइंट कोई बताना चाहेगा? Anyone? चलो अब एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वाइल्ड लाइफ पार्क एडमिशंस, जहां पे नीचे उन्होंने हमें नंबर बताया था। वाइल्ड लाइफ पार्क विजिटर मेंबर्स, ठीक है, विजिटर मेंबर्स में डिक्रीज आया है।
यहाँ पे हमें डिक्रीज नजर आ रहा है। कितना डिक्रीज है आओ देखते हैं। 258,583, I have a calculator, let me do it. 263,595 -1, करीबन तुम कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2% का डिक्रीज नजर आ रहा है। ठीक है, डिक्रीज बाय 2%। लेकिन यहाँ पे जो इनकम है वाइल्ड लाइफ पार्क एडमिशंस, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज है। सो नंबर ऑफ विजिटर्स have decreased, yet the amount of income from wildlife park admissions has increased. This shows the price effect. यहां पे देखो, इन्होंने इस पैराग्राफ में हमें एक बात कही थी, इस पैराग्राफ के अंदर, कि इन्होंने पहली दफा प्राइसेस बढ़ाई हैं, रेज्ड द प्राइस ऑफ एडमिशन। तो ये लाजिम सी बात है कि अगर 2% डिक्रीज वहां पे हो भी गया है, उसके बावजूद अगर एक स्लाइट इंक्रीज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, 1-8% का, 2% का, तो वो इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने प्राइस इंक्रीज की थी, पहली बार प्राइस इंक्रीज की थी। अप्रोक्सीमेटली ये प्राइस इंक्रीज की वजह से हमें यहाँ पे ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है, अदरवाइज ये डिक्रीज हो जाता है। एक पॉइंट आप एनालिसिस का यहाँ पे ये कह सकते हैं, मेंबरशिप फीस इंडिविजुअल की कम हो रही है या कंप्लीटली फ्लैट है, कॉर्पोरेट की बढ़ी है लेकिन नंबर बहुत छोटा है, कॉर्पोरेट का नंबर जो है वो बहुत छोटा है। मेंबरशिप फीस कॉर्पोरेट नंबर इज वेरी स्मॉल, कॉर्पोरेट का नंबर इतना छोटा है इसलिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कहलाएगी, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कहलाएगी, इट्स नो अचीवमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल वाली है, इसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है कि व्हाई इज इट हैपनिंग, इट नीड्स अटेंशन। क्या कोई कैंपेन चलाने की नीड है, यहाँ पे फंड्स रेज करने की जरूरत है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। फाउंडर छोड़ के चला गया तो ऐसा तो नहीं कि कोई इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा, बिल्कुल भी। पहले फाउंडर था तो इस पे ध्यान दिया जा रहा था, अब इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये पॉइंटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी देखो थोड़ा सा डिक्रीज आ गया। ठीक है, हम इसके अंदर वो वाला पॉइंट रेस कर सकते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन था और रिसेशन की वजह से सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन अगर रिसेशन इसका रीजन नहीं है, देन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शुड बी अटेंटिव टुवर्ड्स हियर। जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उनको पर्टिकुलरली इसको फोकस करना चाहिए कि भाई यहाँ कोई गलती तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि फाउंडर चला गया तो बाकी लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। डोनेशंस में भी काफी हद तक कमी आ गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो डोनेशंस थे वो नाम के ऊपर मिल रहे थे, गुडविल ऑफ द फाउंडर, ऐसा तो नहीं है कि वो गुडविल ऑफ द फाउंडर की बेस के ऊपर मिल रहे थे और अब नहीं मिल रहे, इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको रिवाइव करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स देने होंगे। इधर रिक्वायरमेंट में ना उसने एनालाइज का बैठ है, कहीं भी हमें ये नहीं कहा कि आप सजेशन देंगे इसको करना क्या चाहिए। अगर तुम देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में एनालाइज द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब भी वर्ड एनालाइज लिखा हुआ हो तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ी जो है उसके ऊपर जो है वो कोई रीजन सजेशंस दें और मशवरे दें कि कंपनी को ये करना चाहिए। कह रहे एनालाइज करो, प्रोवाइडिंग रीजंस फॉर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट। आप रीजंस बता सकते हैं, इसकी इम्प्लीकेशन बता सकते हैं कि इनके लिए अलार्मिंग होगा, आगे जाके फॉल आ सकता है, आगे जाके मसला हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है दैट यू कम अप विद ऑल काइंड ऑफ सजेशंस कि अब कंपनी को ये करना चाहिए, अब कंपनी को ये करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो वाली बात थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह से लिंक की जा सकती है। सही है। एजुकेशन प्रोग्राम्स में काफी हद तक कमी आ रही है, मे बी शायद एजुकेशन प्रोग्राम्स वक्त पे कंडक्ट नहीं किए जा रहे या इस वक्त रिसेशन की वजह से इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। वाइल्ड लाइफ पार्क शॉप एंड कैफे, इसके रेवेन्यू में स्लाइट इंक्रीज है, ठीक है, अपनी जगह पे कोई मसला नहीं है, लेकिन डोनेशंस में कमी आ गई है। तो ऐसा तो नहीं कि गुडविल की वजह से मिल रही थी, और दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये अगर अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करते रहेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इसकी इम्प्लीकेशन आगे ये हो सकती है कि इनके पास जरूरत की चीजें ना हो, दिस इज नॉट
सस्टेनेबल। ये कोई सस्टेनेबल या अच्छी बात नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू 5,25,000, whereas net income amounts to 2,36,000. This is a significant risk for the BCO as if the disposal of property wouldn't be made, BCO would be at net loss position. बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर प्रॉपर्टी सेल करने की जो वैल्यू है, विदाउट दिस वी आर एट अ लॉस। हम एक लॉस पोजीशन पे हैं जो आगे जाके इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती है। तो क्या आपको कोई कैंपेन चलाने की जरूरत है, लोगों से मिलकर डोनेशन के लिए बात करने की जरूरत है, और ज्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है, जहां पे आपको डोनेशन दिए जा सके, लोग आके कंट्रीब्यूट करें, यहाँ पे मेंबरशिप के नंबर्स जो है वो बढ़ जाए। एक्सपेंडिचर में कोई खास कमी नहीं आई है, एक्सपेंडिचर कोई डिक्रीज नहीं हुए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज ही हुए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट रेवेन्यूज उस हिसाब से नहीं हो पा रहे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, आगे जाके फ्यूचर में मजीद लॉसेस ना हो। फ्यूचर माइट वारंट फर्दर एंड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, फर्दर एंड ह्यूज लॉसेस, ये पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एरिया हमारे पास है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज देखो अगर, तो विजिटर्स का नंबर तो डिक्रीज हुआ ही है, ठीक है। इनकम पर विजिटर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है इधर। इसको तुम लिंक कर सकते हो एक लाइन के अंदर कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ पार्क शॉप एंड कैफे का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इसकी इनकम पर विजिटर भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। एवरेज ट्रेनिंग डेज पर स्टाफ मेंबर ये कम हो चुका है, ये कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके ऊपर आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई ये जो एवरेज ट्रेनिंग्स पर डे है, एवरेज ट्रेनिंग डेज है, ये डिक्रीज होना कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो डिक्रीज है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जा रहा है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कोर मिशन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इससे पूरे नहीं हो पाएंगे अगर इसी तरह से ही चलता रहा। कॉस्ट पर स्टाफ ट्रेनिंग डे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटर्नल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये कम हो चुके हैं, इस पर भी एक पॉइंट बना सकते हो। नंबर ऑफ एनिमल्स रिटर्न टू नेचुरल हैबिटेट्स, ये थोड़ा सा इसके अंदर स्लाइटली इंक्रीज आया, ज्यादा इंक्रीज नहीं आया। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ट्रैक, इट इज ऑन ट्रैक, लेकिन जो आज कंडीशन है दिस इज अलार्मिंग। अगर इसके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं तो फ्यूचर में और ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, फ्यूचर में और ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। फ्यूचर माइट वारंट फर्दर ह्यूज लॉसेस, और आगे जाके सस्टेनेबिलिटी डाउट में आ सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को अप्रोप्रिएट मेजर्स यहाँ पे लेने होंगे। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स और मेजर्स यहाँ पे लेने होंगे, ठीक है। समझ आती है बात हमें यहाँ पे? ऑल राइट, तो ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सॉर्ट ऑफ हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। एग्जाम के लिए आई वुड रिकमेंड कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए थोड़े बहुत रेशियोज देख के जाना। अगर वहाँ पे रेशियोज आते हैं तो आप उन रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो ये उस तरह से नहीं ऑपरेट कर रहा। लेकिन अगर वैसे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जीपी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये वाली सारी चीजें जो है वो निकाली जा सकती हैं, और उसके बाद इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है या डिस्कशन किया जा सकता है एग्जाम में। क्या ये पॉइंट समझ आता है? रिक्वायरमेंट क्लियर होती है एवरीवन? अब देखो एक ही सिनेरियो है, पहले हमने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स वाली बात की, अब हमने इसी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाली बात की, ठीक है। अब थर्ड में ये हमसे कहता है, तीसरी रिक्वायरमेंट में, सेकेंड रिक्वायरमेंट में, prepare a report for the CFO which evaluates the extent to which the external environment could impact on the BCO's strategic objectives. जी भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे देखते हैं आप? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हर्ट कर सकता है या चेंज कर सकता है? इसके लिए पहले हमें देखना होगा कि उन्होंने रेलेवेंट अपेंडिक्स हमें कौन सा दिया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने के लिए। एक तो 2021 के रिव्यू में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। आगे हम बाकी एग्जिबिट्स में देख लेते हैं। ये पहला एग्जिबिट हो गया, रिव्यू में हमें कुछ चीजें पता चली कि ठीक है कंपनी डिफिकल्टी फेस कर रही है। ये बोर्ड के बारे में है, गवर्नेंस का इसके ताल्लुक है। रिसेंट चैरिटी सेक्टर रिसर्च आर्टिकल, इसको पढ़ते हैं, इससे शायद हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके।
Why charities must change. The Global Charities Institute for Research by Professor Falana. A number of events and changes have happened in the last couple of years, which have given the managers of many charities some cause for concern. Since the global recession over a decade ago, many countries are still feeling its effects, and governments globally has been financially under pressure. This has impacted on the wider population whose income has also been overstretched. Okay. Linked to this is the general financial position of charities. Many charities have for too long been over-reliant on a small number of funding options. If a funding source ends, the impact on a charity can be immediate and devastating. Many publicly funded grant awarding bodies and corporate supporters of charities have reluctantly had to reduce their support for charities, both financially in terms of volunteering, as they have seen their own incomes reduced by the financial crisis. यहाँ पे बात हो रही है particularly environment के बारे में. इस पूरे एरिया में अगर आप देखो, यहाँ पे इसने 2-3 काम की बातें ये बताई कि भाई बहुत सारी चैरिटी के जो इदारे हैं वो चंद ऑप्शंस पे रिलाई करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फंडिंग ऑप्शंस. जब ये चले जाते हैं तो फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है. द इम्पैक्ट ऑन अ चैरिटी कैन बी इमीडिएट एंड डेवास्टेटिंग. अगर ये चलेगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनकी इनकम रिड्यूस होने की वजह से उनके अपने फाइनेंशियल क्राइसिस और अपने फाइनेंशियल मसाइल की वजह से इस कंट्रीब्यूशन को कम कर दिया है जो वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को पहले दिया करते थे. However, public expectations of the work done by charities are still high, which places increased demands on all charities, and many have found themselves at risk of being unable to meet expectations. For example, many global nature and animal protection charities have seen demand for their support and protection increase dramatically as habitats around the world are being increasingly destroyed by human activities. However, year on year, these charities struggle to maintain stable funding levels. Some of the decrease in charitable funding has been caused by donor fatigue, as people have become overexposed to charitable requests and therefore stop donating. इतने लोग बोलने लगे हैं, इतने ज्यादा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं कि आदमी कहता है भाई किसको डोनेट करूं किसको छोड़ूं. Some charities have been accused of hard selling their services by bombarding donors with requests by post, email, and others on the streets. Charities have no doubt become more aggressive in trying to win donor support, resulting in some local authorities banning street donations to stop aggressive donor collection tactics. This also impacts badly on the general reputation and perception of the sector. More legislation is expected in the coming years to stop the use of hard sell marketing tactics used by some charities. A younger generation of donors has also been brought up in a time of austerity and is less likely to donate to charitable causes. Some charities have recognized the younger generation as a potential source of donations and have used new forms of technology, such as social media platforms and mobile technologies to effectively communicate and interact with a potential new source. However, some charities have been slow to protect and nurture the customers and donors they already have, missing the opportunity to build better relationships with them through the use of e-marketing and communication strategies. The failure to innovate or update organizational systems to match the needs of the society we live in may be a major downfall to many charitable organizations. जी भाई, कैसा देखते हैं अब आप इसके environment को? अब हम requirement देखते हैं क्या थी exactly? The external environment could impact on the BCO's strategic objectives. Strategic objectives पता है 1 million लोगों तक पहुंचना है, 100 habitats को foreign से जो है वो अपने natural habitat तक species को पहुंचाना है, स्पीशीज के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस के प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं. फाइनेंशियल हालात आपके सामने है, कंपनी के आपके सामने है. तो अब इसको एनालाइज करो कि यहाँ पे कंपनी के लिए थ्रेट क्या है और कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. जी भाई, एवरीवन. जो तुम लोग अक्सर कहते हो ना सर मॉडल कौन सा अप्लाई होगा, मुझे बताओ यहाँ पे जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं या एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आती हैं. जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं यहाँ पे इन्होंने हिंट भी किया है इसको, किस मॉडल से उसको एनालाइज करोगे? 5 फोर्सेस से, स्वॉट से या पेस्टल से? क्वेश्चन मार्क नहीं भेजना है भाई. देखो स्वॉट तो है अमील, स्वॉट तो है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्वॉट में जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है उसके लिए मॉडल कौन सा लगाओगे, किस तरह एनालाइज करोगे? मोइज ने कहा पेस्टल, उसामा ने कहा पेस्टल, अवीन ने कहा पेस्टल. बिल्कुल सही है, पेस्टल लगाएंगे. जरूरी नहीं है पेस्टल के सारे एलिमेंट्स अप्लाई हो, 2-3 एलिमेंट्स भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन लगेगा पेस्टल यहाँ पे. थोड़ी बहुत उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी बात की है, थोड़ी बहुत उन्होंने सोशल व्यूज की बात की है, लीगल की भी बात की है कि भाई लोग
झूठी भी डोनेशन की एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं जिनका काम है ही नहीं एक्चुअल में करना, लेकिन वो डोनेशन मांग रहे हैं। चले जी, मैं आपको 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। पेस्टल के तौर पे आपने इसके ऊपर पॉइंटर्स लिखने हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। 5 to 7 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं, 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी से इसको अपने पास सॉल्व करें। चलिए जी, अब आंसर को डिस्कस करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा डिटेल में अपने आंसर्स भेजे हैं। लेट मी रीड देम वंस, उन्हें एक दफा पढ़ लेते हैं। अवीन का मैसेज आया है, ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न देयर इज अ थ्रेट ऑफ रिड्यूस नंबर ऑफ फंडिंग। बिल्कुल सही है, एज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रिड्यूस इनकम्स, social support is high and therefore there's an opportunity to cash in on funding from corporations as part of CSR. बिल्कुल सही है, must be willing to ठीक है। legislation in regards to hard selling creates a threat of unable to market। नहीं, लेजिस्लेशन ने तो ये सपोर्ट किया है कि जो इस तरह से गलत तरीके से डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं या हर जगह पे कोई खुल के बैठा हुआ है, उनके लिए एक रेगुलेशंस ले आए। लेकिन इन जनरल ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है कि शायद फिर लोगों का भरोसा उठ जाए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोशल मीडिया ब्रिंग्स क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। चलो, लार्जली सही लिखा है। आयशा का मैसेज आया है, थ्रेड्स में देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ फंडिंग ऑप्शंस एंड पब्लिक इज ऑलरेडी ओवर एक्सपोज्ड टू चैरिटेबल रिक्वेस्ट, imposes a threat to further decline। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे थ्रेट है बहुत बड़ा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है, बिल्कुल सही, आप सही तरीके से अपने आप को मार्केट में पोजीशन कर सकते हो। अमील कहते हैं सर इकोनॉमिक फैक्टर्स में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल रिसेशन, बिल्कुल सही। repercussions of economic recession, social में charities have been accused of hard selling services which have impacted the overall culture, बिल्कुल सही कह रहे हो। लीगल में some of the local authorities have taken action against street donation को उन्होंने बैन किया है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नहीं, टेक्नोलॉजी में तो एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास, ये कर सकते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल को यूज करके। अभी अगर पब्लिक को कोई नेगेटिव इंप्रेशन मिल रहा है तो पब्लिक के सामने सही तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। Unstable government may cause decrease in funding, political, economical, social, ecological, disposable income affected due to। नहीं, डिस्पोजेबल इनकम वाली बात फैजान इकोनॉमिकल में आएगी, सोशल में नहीं आएगी। वो सोशल में बिहेवियर आएगा, जो यंगस्टर्स का बिहेवियर है वो नहीं डोनेट करना चाहते, वो आएगा। चले, मोइज ने क्या लिखा है, इकोनॉमिकल में रिलायंट ऑन वेरी स्मॉल नंबर, बिल्कुल सही है। डोनर्स इनकम ओवर स्ट्रेच्ड, बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी में एक अपॉर्चुनिटी है, सोशल में बहुत ज्यादा फटीग है। बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं यार, माशाल्लाह। लीगल में लेजिस्लेशन अगेंस्ट हार्ड सेलिंग एंड अदर inappropriate tactics, environmental sector is not working as expected to save deforestation। environmental में कह सकते हो कि ये एक नेचुरल मसला है वहां पर, इसमें जरूरत है काम करने की जानवरों के एतबार से। यार मोर और लेस तुम लोगों ने सबने सही पॉइंट आइडेंटिफाई किए। हम यहाँ पे पूरा पेस्टल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंप्लीट जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं और पॉइंट्स जो है वो बता सकते हैं। मोर और लेस तुम लोगों ने सही पॉइंट्स बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में एक मेजर पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने चीज आइडेंटिफाई की है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर, वो रिसेशन है, ठीक है। इनकम लेवल्स के बारे में बात है, ओवर स्ट्रेस्ड पोजीशन है। ये तीनों की तीनों आपके पास थ्रेट्स वाले एरिया में आ सकती है। ये जेन्युइनली एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में काफी हद तक एक मसला बन सकता है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सोशल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, सोशल पर्सपेक्टिव में एक डोनर फटीग वाला पॉइंट है आपके पास, which is very relevant। डोनर फटीग, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चैरिटी का इंक्रीज कर जाना, बहुत ज्यादा, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी हाई है जो कि बहुत ज्यादा पूरी नहीं हो रही है सोशल पर्सपेक्टिव से। ये भी एक पॉइंट यहाँ पर आता है। टेक्नोलॉजी में काफी हद तक इनके पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी में काफी हद तक एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि जो गलत इंप्रेशन लोगों पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का पड़ा है, जो गलत इंप्रेशन पड़ा है, उस इंप्रेशन को ठीक किया जा सकता है, उस इंप्रेशन को ठीक किया जा सकता है विद द मींस ऑफ सोशल मीडिया, with the means of other technological elements। आई रिमेम्बर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में किसी टाइम पे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक दफा गया था तो मैंने कुछ अमाउंट वहां पे डोनेट किया था।
आई रिमेम्बर वो अमाउंट बहुत नॉमिनल था, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट मैंने डोनेट किया था, काफी टाइम पहले की बात है। आई वाज अ स्टूडेंट बैक देन, जब मैं पढ़ रहा था, सीए कर रहा था, शायद इंटरमीडिएट में था, उस वक्त की बात है। आई रिमेम्बर उस टाइम पे जब इतना ज्यादा चीजें वो नहीं थी, सोशल मीडिया वगैरह इतना इन नहीं था, फेसबुक इतना इन नहीं था, या था भी तो बस ग्रोथ फेज में था अपनी, या स्टार्टिंग फेज में था। उन्होंने मुझे बाकायदा एक रिसीट दी थी। मतलब पहले मेरा नंबर पूछा, मैंने मोबाइल नंबर उनको बताया, फिर जो मैंने पैसे उनको पे किए थे उसकी उन्होंने मुझे एक रिसीट प्रिंट करके दी, और मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी तरफ से फलाना इदारे के इस जगह पे इतना अमाउंट जो है वो डोनेट हुआ है। यकीन करें, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि यार अगर ये पैसे देने पर इतनी स्क्रूटनी रख रहे हैं कि मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैसे पैसे लेने वाला अपने जेब में नहीं डाल रहा बल्कि कंपनी के खाते में डाल रहा है। क्योंकि जब हम डोनेशन देने जाते थे तो वहां पे क्लियर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि अगर आप डोनेशन दें तो रिसीट जरूर लें। रिसीट निकलेगी प्रिंटर से, प्रिंट जाएगा सिस्टम से, सिस्टम में चल रहा है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वाला कह रहा है जब तक मोबाइल नंबर नहीं डालोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो उसको मोबाइल नंबर डालना पड़ रहा है, उसको नाम डालना पड़ रहा है, उसको डिटेल्स डालनी पड़ रही है। जब मोबाइल नंबर नाम डिटेल्स डाल रहा है तो मैसेज आ रहा है आपके पास, और आप देख रहे हैं कितना अमाउंट उसके ऊपर क्रेडिट हुआ, अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट से आपका रिलायंस फैक्टर बढ़ जाता है कि नहीं यार, अगर ये इदारा इतना प्रोफेशनल है तो ये हमारे पैसे भी सही जगह पे लगाता होगा, इसको आप डोनेट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाले एलिमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एन अपॉर्चुनिटी, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। सही। लीगल पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हैं कि भाई लेजिस्लेशन ये स्ट्रीट डोनेशन लेने वालों का और स्ट्रीट चैरिटी लेने वालों का, इनके लिए लेजिस्लेशन बढ़ रहा है। ओवरऑल लेवल पे एक थ्रेट ये हो सकता है कि बहुत टाइट हो जाए रेगुलेशंस, कल को हम ना काम कर सकें, और ये वाली सारी चीजें। लेकिन अगर कंपनी अपने आप को सही पोजीशन करती है विद विद मींस ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज, तो फिर ये शायद इतना मसला आगे जाके नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सा हमें इस तरीके से इलेबोरेट करना होगा। सही। तो पेस्टल के परस्पेक्टिव से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पे इसका इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ पे, एनी कंफ्यूजन्स, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज जिससे आप अग्री ना करते हो, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अगली रिक्वायरमेंट पे। चले जी, ठीक हो गया। अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट है, इसके बाद हमने ये वाला भी डन कर लिया। एप्लीकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो जैसे हम अभी बात कर रहे थे, that the BCO could use to enhance its e-business capabilities। जी भाई, ई बिजनेस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कैसी एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी से हेल्प ली जा सकती है? एनीवन? वर्चुअल रियलिटी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया यार। मतलब लोग चश्मा पहन के नेचर के पास चले जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा? मे आई ओपन माइक टू इलैबोरेट? हाँ, एक मिनट, मैं अभी माइक का एक्सेस दे देता हूँ आपको, उसकी में मिनट। जी बिल्कुल, अब आप बोल दें। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। So my idea is like अगर virtual reality अगर हम ये business में लाते हैं तो इससे benefit ये होता है, for example कुछ लोग होते हैं जो उस specific locations के अंदर नहीं exist करते। For example इन्होंने यहाँ पे अपने scenario में बताया कि they exist in 15 different countries, but ऐसे लोग हैं जो travel करके उन locations में, उन wildlife parks पे नहीं आ सकते, but they have huge interest in wildlife। तो वर्चुअल रियलिटीज के साथ ये हो सकता है कि हम उन स्पेसेस के अंदर वर्चुअल रियलिटी के कैमरास और इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और ई बिजनेस में हम उसको सेल करें, उसके लाइसेंसेस सेल करें कि वर्चुअल रियलिटी में उस चीज को फील कर सकते हैं, उस चीज को एग्जिस्ट कर सकते हैं 3D में, क्योंकि वो आवाज, वो व्यू, वो विजुअल्स, वो ऐसा फील कराएगा एक इंडिविजुअल को जैसे वो एग्जिस्ट करता है वाइल्ड लाइफ पार्क में। इसके ऊपर हम बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हैं, एंड कंसिडरिंग कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज को, तो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी जो हमें बेनिफिट मिल रहा है ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज currencies going up and down, उससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। So this is one of the e-business capabilities they can tap into.
अग्रीड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो मैं दो पॉइंट वैसे वेरी वेल प्रेजेंटेड, बहुत अच्छा पॉइंट है और वेरी वेल थॉट ऑफ एज वेल, लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सबसे पहली बात ये कि वर्चुअल रियलिटी वाला जो एलिमेंट है या वर्चुअल रियलिटी वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फाइनेंस बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा फाइनेंस लगेगा, सही है। और इस वक्त जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो शायद फौरी तौर पे इसको अलाउ ना करे, फौरी तौर पे ना करे। मे बी सोशल मीडिया में दूसरी चीजों का नंबर पहले आए और बाद में इस पूरी चीज का जो है वो नंबर आ सके, सही है। ये वाला फैक्टर एक मुझे समझ में आता है कि यार वर्चुअल रियलिटी वाला आप इम्प्लीमेंट तो कर सकते हो, बट द आइडिया इज कि इम्प्लीमेंटेशन करने में जो फाइनेंस अप्लाई होगा, जो अमाउंट अप्लाई होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, समझ में आती है बात, लेकिन ओवरऑल परस्पेक्टिव में थोड़ा सा इसमें फाइनेंस वाली चीज को देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी अभी इसको कर सकती है नहीं। दूसरी बात, वर्चुअल रियलिटी की केस में जब लोग एक चीज को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो वर्चुअल रियलिटी की केस में द एनिमल्स आर नॉट एक्चुअली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो एक ऐसी दुनिया है जो नजर आ रही है, जो एवेटार्स की दुनिया है। तो अगर वर्चुअल रियलिटी को ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कल को लोग इस पर रिलाई कर लें कि यार लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं, तो अब ये पार्क्स को बनाने में, अम्यूजमेंट पार्क्स को बनाने में या जानवरों का ख्याल रखने का क्या फायदा, इनको यही दिखाते रहो, ये पैसे देते रहेंगे। तो वो जो एजुकेशन, अवेयरनेस, नेचर को प्रमोट करने वाली बात, जानवरों को प्रमोट करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली बात, वो वाली जो सारी बातें वो रह जाएगी अगर वर्चुअल रियलिटी के बाद एक्चुअल में लोगों को उस अम्यूजमेंट पार्क में या नेचर के करीब किया नहीं जा रहा। एज अ फर्स्ट स्टेप इट्स गुड, एज अ फर्स्ट स्टेप ये किया जा सकता है, लेकिन 100% इसी पे रह जाए और एक्चुअल पे कभी आए ही नहीं जिसके लिए हम ये काम कर रहे थे, तो वो फिर उसका जो पर्पज है, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो जाहिल हो जाएगा। फिर उसको लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे लेंगे कि हाँ वर्चुअल रियलिटी में एक पार्क सा बना हुआ है, वहां पे अच्छे अच्छे किस्म के इस तरह के जानवर होते हैं, हम जाते हैं, उन्हें फील करते हैं, उन्हें देखते हैं, उस जगह को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो वाली चीज क्या जानवरों के लिए डेवलप हो रही है, नहीं हो रही, इसके लिए फर्दर फॉलो अप्स होंगे, फर्दर स्टेप्स होंगे जिनको इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी है, सही। ये वाली एक बात यहाँ पे जो है वो बनती है। बाकी इस पॉइंट को जब लिखो तो ये दो चीजें साथ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परस्पेक्टिव से क्या क्या यहाँ पे जो है वो लाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों, हमेशा इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको लोगों का फीडबैक मिल जाता है, आपको लोगों के थॉट्स पता चल जाते हैं, यू एग्जैक्टली गेट टू नो व्हाट योर टारगेट मार्केट इज थिंकिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट योर टारगेट मार्केट इज थिंकिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। वो थॉट्स वाली चीज यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फिर यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं, ठीक है। वेब बेस्ड या ऐप बेस्ड ट्रेनिंग्स करवाई जा सकती हैं, जानवरों के ऊपर शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा सकती हैं, जिससे वाकईतन लोगों के अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई इनको जिंदा रहने देना है, इस तरीके से इनके साथ नहीं करना है कि ये खत्म हो जाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही, जिनकी मदद से लोगों को एजुकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। आप कहीं सेमिनार कर रहे हैं, कोई कैंपेन कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं, वो की जा सकती है। अपने आप को सही पोजीशन किया जा सकता है, यानी जो आपका इंप्रेशन है या जो लोगों के जहन में आपकी पोजीशन है, उस पोजीशन को बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर कंटेंट लाया जा सकता है, जिससे लोग अवेयर हो, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यार कब किस तरीके से कहाँ पे हमें बिहेव करना चाहिए और किस तरह से सिचुएशन में लेके चलना चाहिए। बेनिफिट्स हैं इसकी, कॉस्ट सेविंग होगी, टाइम बचेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन करा लेंगे, रिसोर्सेज बचेंगे, आपकी एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट हो सकती है, आप एक अच्छा एसईओ करवा सकते हैं। यूजर फ्रेंडली वेबसाइट से लोगों को पता चलेगा आप काम किस तरह करते हैं। यहाँ पे डोनेशंस लिए जा सकते हैं, कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं, लोगों को बताया जा सकता है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज की जा सकती हैं, ठीक है।
एनालिटिक्स के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, कौन से लोग हैं नहीं इंटरेस्टेड है। डेटा डेटा एनालिटिक्स के थ्रू लोगों को टारगेट किया जा सकता है, रीटारगेट किया जा सकता है। ये वाली सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है, बिल्कुल सही। और फिर लास्टली वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स वाली चीज को इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है, बिल्कुल सही। वर्चुअल रियलिटी हो, मेटावर्स हो, इनको इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ठीक है, इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जॉट डाउन होते हैं। इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके बेसिकली हम इस पूरे एरिया को, इस पूरी चीज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? ये पॉइंट क्लियर होता है? चले जी, गुड हो गया। अब लास्ट रिक्वायरमेंट इस सवाल की हमारे पास रहती है, सर as ICAP has newly added the section performance measurement, can we expect the same kind of question in ICAP exam as we previously solved? Could you please reflect briefly of this? अच्छा, ये देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट ICAP पहली दफा पूछ रहा है, लेकिन दुनिया में पहली बार नहीं पूछा जा रहा। ICW में, ACCA में ऐसे क्वेश्चंस आते रहे। MSc2 में तो वो पूछता ही है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में, और मैंने अपने रेगुलर बैच के अंदर इस पर चंद एक सवाल करवाए भी हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर। तो ये इसी तरीके से नॉर्मली पूछा जाता है। आपके सामने P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो की पोजीशंस होती हैं, आपको एनालाइज करना होता है कहाँ पे चीजें गलत हो रही हैं, कहाँ चीजें सही हो रही हैं, किधर फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे चीजें सही चल रही हैं या उसमें फर्दर कोई इनहांसमेंट आ सकती है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट नाम तो इसी चीज का है। बैलेंस स्कोर कार्ड के भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, परफॉर्मेंस पिरामिड के भी हमने वहां पे डिस्कशन किया है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट है तो लार्जली स्पीकिंग यही, सवाल इसी तरीके से बन के आना चाहिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में चंद एक नंबर्स होंगे और फिर उसके बाद आपके पास ये पूरी सूरत हाल होगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है? जितना देखो रेशियोज पे और चीजों की लिंकेज पे तुम्हारा ग्रिप होगी ना, जितनी लिंकेज पे ग्रिप होगी, जितनी चीजों पे ग्रिप होगी, उतना पर्टिकुलरली आप इसको जो है वो लेके चल सकते हैं। सर परफॉर्मेंस पिरामिड थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर आपके पास 3-4 लेवल्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स का लेवल होता है, बिजनेस ऑपरेशंस का लेवल होता है, फिर जो SBUs हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, इनका लेवल होता है, फिर कॉर्पोरेट विजन होता है। नीचे से फ्रॉम द डाउन स्ट्रीम ऊपर तक आते आते आपकी कॉर्पोरेट विजन को हर चीज सपोर्ट करनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस पिरामिड का मकसद है। आपके डिपार्टमेंट्स, आपके बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपके कस्टमर फीडबैक्स, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन, आपकी क्वालिटी, टाइम, डिलीवरी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये सारा कुछ जब मिले तो मिलके वो एक कॉर्पोरेट विजन की तरफ जाना चाहिए और हर चीज इशारा इस तरफ करे कि भाई हम सारे एक ही विजन की तरफ गामजन है। परफॉर्मेंस पिरामिड का मतलब यही है। अब परफॉर्मेंस पिरामिड में सबसे नीचे वाले एंगल पे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, सेल्स वगैरह, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, फिर आपके SBUs आ जाते हैं, फिर कॉर्पोरेट विजन आ जाता है। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस पिरामिड को इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, समझ आती है बात? चले, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास है फिर करंट रिस्क रजिस्टर। ये करंट रिस्क रजिस्टर के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे लास्ट में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, ये वाला। Precisely if we say that performance, एक सवाल आया है, precisely if we say that performance of department should reflect business performance, and in turn it should reflect performance of corporation, right? Not the performance of corporation, but the cumulative achievement of corporate strategy. Corporation की performance कुछ नहीं होती, कंपनी की performance होती है। The performance should get in line, get aligned with the strategy that you wanted to achieve. जो आपका अल्टीमेट गोल था, विजन था या मिशन था, वो अचीव होना चाहिए। That's the complete idea. चलिए, हमने बहुत सारे रिस्क के बारे में अब तक तो बात कर ली है कि कंपनी को क्या क्या खतरे हैं। अब देख लेते हैं कि इन रिस्क के लिए इन्होंने क्या पोटेंशियल इंपैक्ट और रिस्क मिटिगेटिंग एक्टिविटीज लगाई है। तो ये देख लेते हैं रिस्क मिटिगेटिंग एक्टिविटीज ठीक है या नहीं है।
ये कंपनी का लेटेस्ट रिस्क रजिस्टर है, आइडेंटिफाइंग की रिस्क एंड मिटिगेटिंग एक्टिविटीज। फंड रेजिंग प्रेशर है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल हमने भी आइडेंटिफाई किया। इनसफिशिएंट इनकम टू कवर एक्सपेंडिचर, रेपुटेशनल रिस्क ऑफ कैंपेन्स और मेथड्स यूज्ड टू रेज फंड्स। एक सवाल आया सर काफी हद तक टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग से हम परफॉर्मेंस कंपेयर करें, वही परफॉर्मेंस पिरामिड है? नहीं, आगे जाके आप सेल्स को भी देखते हैं, डिपार्टमेंट लेवल्स को भी देखते हैं। हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सवाल सीईओ से करता है, सीईओ सवाल बाकी सीईओ लेवल सी लेवल ऑफिसर से करते हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, इन सारों से सीईओ सवाल करता है। ये जो चीफ्स होते हैं ये अपने मैनेजर से सवाल करते हैं, वहां से शुरू होता है ये तुम्हारा टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल का मामला। और वो लोग नीचे अपने सबऑर्डिनेट से, लेबर से और असिस्टेंट मैनेजर से सवाल करते हैं। और ये पूरा पिरामिड मिलके उस स्ट्रैटेजी पे पहुंचता है जो कंपनी को अचीव करना है। समझ में आती है बात? तो परफॉर्मेंस पिरामिड और कुछ नहीं है, इन 4 लेवल्स का एक नाम है जिन्हें एक पिरामिड की फॉर्म में दिखा दिया गया है, जिसमें सबसे नीचे ऑपरेशनल टेक्निकल प्लानिंग की चीजें आती हैं, फिर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप मैनेजरियल लेवल की बातें आती हैं, फिर अल्टीमेटली कंपनी की कोर गवर्नेंस की बात आती है। चलो ठीक हो गया, समझ आ गया, वेरी गुड। फंड रेजिंग प्रेशर है कंपनी के ऊपर, कंपनी की इनसफिशिएंट इनकम होगी, रेपुटेशनल रिस्क हो जाएगा, बिल्कुल सही, वेरी राइट। दूसरा रिस्क है लॉस ऑफ की स्टाफ, एक्सपीरियंस और स्किल्स लॉस्ट, ऑपरेशनल इंपैक्ट होगा, बिल्कुल सही। इंक्रीज कंपटीशन, लॉस ऑफ इनकम, रिड्यूस पब्लिक इनकम, यहाँ पे चैरिटी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंक्रीज कर गई है, उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, ये भी थ्रेट है, बिल्कुल है। ऑपरेटिंग इन डेंजरस लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, स्टाफ वॉलंटियर्स इंजर्ड और किल्ड कैरिंग आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस तरह की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के रिस्क बहरहाल होते हैं, ठीक है, इस तरह के रिस्क बहरहाल होते हैं। फंड टाइम पे ना रेस कर पाए, की स्टाफ ना हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, डेंजरस लोकेशंस पे काम करें जिससे मसला हो, ये वाले सारे रिस्क है। एक आध रिस्क आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि भाई आप अपनी एजुकेशन और अवेयरनेस की कैंपेन्स इतनी ना कर पाए, कैंपेन्स बहुत ज्यादा कम हो जाए, आपके पास क्वालिफाइड और सही स्टाफ ना हो, वो कैंपेन्स ना करे, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। रिस्क मिटिगेटिंग एक्टिविटीज इन्होंने क्या सोची है? implement appropriate cost budgeting procedures, monitor the adequacy of financial returns achieved, report fund raising activities to stakeholders in annual report। ये सिर्फ रिपोर्ट करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे फंड रेजिंग इंक्रीज हो सके, जिससे फंड रेजिंग इंक्रीज हो सके। आपको यहाँ पे ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिससे फंड रेजिंग इंक्रीज हो सके। उसमें कैंपेन्स हो सकता है, उसमें सेमिनार्स हो सकते हैं ताकि लोगों को पता चले व्हाट यू आर डूइंग, इसमें जाके इन पर्सन मीट मिलना हो सकता है जिससे लोग आपको वाकई डोनेट करें। सक्सेशन प्लानिंग, अग्री नोट पीरियड, नोटिस पीरियड्स एंड हैंडओवर्स, रिव्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पॉलिसीज। सक्सेशन प्लानिंग वाली बात सही है, लेकिन यहाँ पे आपको उनके बेनिफिट्स को भी देखना चाहिए, रेम्यूनरेशन को भी देखना चाहिए, कंपनी के इनसाइड कल्चर को भी देखना चाहिए। ऐसी तो कोई कल्चर में चीज नहीं है कि लोग आपको छोड़ के जाएं, ये तो आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, जो रूट कॉज है वो तो इससे ट्रीट होगा, सक्सेशन प्लानिंग से, रेम्यूनरेशन बेनिफिट से, कंपनी के कल्चर से, ठीक है। एक हार्मनी का कल्चर हो, लोगों के दरमियान बातचीत हो, वो बेहतर हो सकता है। कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है, मॉनिटर मेथड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, मॉनिटर पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोफाइल, बिल्कुल सही पॉइंट है। आपको पब्लिक अवेयरनेस और प्रोफाइल के ऊपर काम करना होगा और सर्विस डिलीवरी पे। Operating in dangerous locations around the world, monitor and review activities and recognize dangerous locations, closely work with local security and safety services, regular training और insurance। इंश्योरेंस भी यहाँ पर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, प्लस जो लोग इस तरह का डेंजर अपने ऊपर लेते हैं इनको आप फाइनेंशियल बेनिफिट भी दें उसका, ताकि वो मोटिवेटेड हो ऐसा काम करने के लिए। जंगलात में वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप उसका फाइनेंशियल बेनिफिट दें, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, इक्विपमेंट दें। इक्विपमेंट की यहाँ बात नहीं हुई है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो दिया जाए, सेफ्टी सर्विसेज दी जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। वैसे लार्जली रिस्क मिटिगेटिंग एक्टिविटीज ठीक लिखी हुई है, चंद एक पॉइंट्स यहाँ पर हमने 6-7 पॉइंट्स तकरीबन हमने यहाँ पे ऐड भी कर दिए, तो यहाँ पे हमारी ये चौथी रिक्वायरमेंट भी मुकम्मल हो गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नाउ, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे मुकम्मल कर लिया।